रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल एंड विलास। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानीगंज में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुकेश जैन और पश्चिम बर्धमान जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने रानीगंज के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। मारवाड़ी पट्टी में 3 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके साथ ही दोनों प्रशासनिक आला अफसरों ने कहा कि कुमार बाजार इलाके में भी कुछ घरों को चिन्हित किया गया है जिनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। दोनों आला अफसरों ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की। तो डीएम साहब আপনাকে বললেন কি যেহেতু জায়গা কেস আছে এই কেসটা আমরা রিভিউ করছি ওই কেসটা কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে কিনা ওই কেসটা লোকালি পেয়েছে কিনা অথবা আর কোনো কারণ আছে কিনা সেটাকে রিভিউ করে অ্যাকর্ডিংলি আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। তো গতকাল একটা আমরা মিটিং করলাম, আজকে আমরা ভিজিট করেছি। ভিজিট করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম कि এই জায়গাটা যেখানে এই 3টে বাড়ি এট দ্য সেম টাইম কুমার বাজার ওখানে 20টা বাড়ি সেটাকে আমরা কন্টেনমেন্ট করছি। সেই জায়গা হোম ডেলিভারি থেকে শুরু করে রাস্তাটা ব্লক করা থেকে শুরু করে সব কিছু পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি। এট দ্য সেম টাইম আপনাদের মাধ্যমে আমরা এখানকার সবের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি কি সবাই মাস্ক পরবেন, অযথা বাড়ি থেকে বেরোবেন না, অযথা ভিড় করবেন না। আজকে আমরা 3টা ট্যাবলো এখান থেকে ওপেন করছি। ট্যাবলো গোটা রানীগঞ্জ এলাকায় ঘুরবে। যে জায়গায় আপনার ট্যাবলো ঢুকতে পারছে না সেই জায়গায় আমরা টোটোর মধ্যে মাইকিং করাচ্ছি। সবাইকে আমরা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্সটা মেনে চলবেন। এখন অবধি সিচুয়েশান আমাদের এখানে পুরোপুরি কন্ট্রোলে আছে। কোথাও কোনো সিমটম দেখালে, কোথাও কোনো ফিভার দেখালে, শারীরিক সিমটম দেখালে আমাদের কাছে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের সহযোগিতা পেয়ে কিন্তু এখন অবধি আমরা করোনা পরিস্থিতি সামান্য ছিল, সেটা ভবিষ্যৎ থাকবে বলে আমরা আশা করি। ডেফিনেটলি নেওয়া হয়েছে। যারা মাস্ক পরছেন না তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, তাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি। সেটা গোটা কমিশনারেট জেলা জুড়ে চলছে। সেটাই তো করতে এলাম আজকে। রানীগঞ্জ নিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি, মাইকিং করাচ্ছি, কন্টেনমেন্ট করাচ্ছি অ্যান্ড আর বেসিক্যালি সংক্রমণ না ছাড়ায় তার জন্য যাগুলো ব্যবস্থা নেওয়ার আছে নিচ্ছি। আমরা দেখি পিছনে একটা বাড়িতে 2জন পজিটিভ হয়েছে। তাদের প্রথমের একজনের তাদের ট্রাভেল হিস্ট্রি ছিল, কিন্তু আরেকজন সেখান থেকে সংক্রমণ হয়েছে। ফলে আমরা কোনো রিস্ক নিতে চাইনি। সেই জন্য দেখছেন যে 3টে বাড়িকে আমরা সিল করে দিয়েছি। এই 3টে বাড়িকে আমরা কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম এবং সেটা গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছি। এই 3টে বাড়ি এছাড়াও আমরা কুমার বাজারে যাব, সেখানে একটা স্বামীর মতো রয়েছে, সেখানে একটা বাড়িতে আমরা 2জন পেয়েছি। এবার আগে থেকে আমরা প্রিকশন নেওয়ার জন্য আমরা ওখানে 20টা অ্যাডজনিং বাড়িকে পুরো কাভার করে আমরা ওটাকে আমরা কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি এবং সেই মতো করে ব্যারিকেডিং করছি যাতে আর ফার্দার কোনো কন্ট্যাক্টে কেউ না আসে আর যাতে স্প্রেড না করে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে জেলায় 22টা কেস অ্যাক্টিভ আছে। টোটাল জেলায় সেটা ছড়িয়ে ছিটে রয়েছে। আউট অফ 22 18 জনের তাদের ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে। ট্রাভেল হিস্ট্রি মিন তারা বিভিন্ন স্টেট হাইবারের স্টেট থেকে তারা এসেছে, সেখান থেকে সংক্রমণ ছিল। তাদের যারা বাড়ির মেম্বার যারা ইমিডিয়েট কন্ট্যাক্টে ছিল তাদের কিছু হয়েছে। সুতরাং 22টা কেস অ্যাক্টিভ ছিল। তাও আমরা কোনো রিস্ক নিচ্ছি না, যেহেতু এখানে পেয়েছি ইমিডিয়েট আমরা অ্যাক্ট করেছি। সিপি স্যার এসছেন, আমি এসছি, এন্টার এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে। আমরা ঘুরে ঘুরে এইভাবে অ্যাসেস করছি ফিল্ডে গিয়ে কোথায় আছে, যেখানে আছে ইমিডিয়েট আমরা অ্যাক্ট করছি। এবং আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলতে চাই, সাধারণ মানুষদের সবাই যেন প্রোটোকল ফলো করে, সবাই যেন মাস্ক ব্যবহার করেন এবং সবাই যেন একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা বলা হচ্ছে সেটা মেনটেন করে। আর যদি কারোর জ্বর হয়, যদি কারোর শ্বাসকষ্ট হয়, ইমিডিয়েটলি যেন আমাদের জানান, সো দ্যাট আমরা যত তাড়াতাড়ি তাদের সোয়াব টেস্ট করে যদি পজিটিভ পাই, তাদের কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং যত কুইক করব তত কিন্তু এই ইনফেকশানটা কম ছড়াবে। সুতরাং আপনারা দিতে চাই যেন সবাই আমাদেরকে তুরন্ত জানায়, যেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব কুইক অ্যাক্ট করতে পারে। চার জায়গায় ছড়ায়নি, আমরা যেটুকু পেয়েছি এখানে প্রথম 3টে পেয়েছিলাম। একটা বাড়িতে হিস্ট্রি আছে, একটা বাড়িতে 3 জন, আর একটা বাড়িতে 2 জন। যেখানে হচ্ছে সেই জোনটাকে লোকালি জোনটাকে আমরা কন্টেনমেন্ট করছি, ঘিরে দিচ্ছি, প্রোটেকশান দিচ্ছি, ঠিক আছে। আর যে বাকি কেসকে বললাম সেটাকে ফর্দার ডিস্ট্রিক্ট আছে, বিভিন্ন সেগমেন্টে আছে। কোনো যে কনজেস্টেড সেগুলো যদি ক্লাস্টার অ্যাপ্রোচে থাকতো, যে এক জায়গায় অনেকগুলো কেস পেতাম, তখন আমাদের এন্টায়ার জোনটাকে কন্টেনমেন্ট করতে হতো। যেহেতু এখানে খুব আইসোলেটেড ওয়েট রয়েছে, 1-2 কেস রয়েছে, সুতরাং যেখানে আমরা পাচ্ছি সেই লোকালি জায়গাটাকে আমরা কন্টেনমেন্ট করে তার আমরা প্রোটেকশন সব জায়গায় আমাদের চেকিং চলছে। আপনারা জানেন যে এখানে ফিভার ক্লিনিক সব কিছু খোলা রয়েছে।
যাদের এই ধরনের কোনো প্রবলেম আছে আমাদের ডক্টর এবং তারা সবসময় সেখানে রয়েছেন, তারা টেস্ট করছে। যেখানে টেস্টে পজিটিভ পাচ্ছি আমরা সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করছি এবং তাদেরকে আমরা আইসোলেশন हाउस নিয়ে যাচ্ছি। आसनसोल शहर के रेलपाल इलाके में स्थित एक टीएमसी पार्टी कार्यालय में गत 7 दिसंबर 2019 को आगजनी की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद मंत्री मलय घटक, मेयर जितेंद्र तिवारी समेत अन्य अधिकारी यहां पहुंचे और इस पार्टी कार्यालय को बनाने की बात कही। इसके बाद स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा एक पक्के वाली टीएमसी कार्यालय बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इसे बंद करने की नोटिस भेज दी गई। नगर निगम द्वारा भेजे गए इस नोटिस के बाद तृणमूल ब्लॉक प्रेसिडेंट उत्पल सिन्हा ने कहा कि टीएमसी के राज में टीएमसी के बोर्ड वाले नगर निगम की ओर से भेजा गया यह नोटिस उनके समझ से परे है। এটা আমাদের ये लगभग 7-8 साल का एक पार्टी ऑफिस है, जो 6 महीना पहले ये पार्टी ऑफिस यहाँ पर था। इसको रातारात जला दिया गया। तो जला देने से यहाँ का हजारों आदमी का, किसी का राशन कार्ड, किसी का आधार कार्ड, किसी का श्रमजीविका कार्ड, यहाँ जो काम होता है दिन रात डे नाइट काम होता है यहाँ। और विशेषतः मेरा मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है उसी का ज़्यादा काम यहाँ होता है। तो इसको रिनोवेशन के लिए हम लोग इसको थोड़ा हटा के इसको शुरू किए थे कि ये रिनोवेशन। दुख की बात ये है, आसनसोल की हर सीनियर लीडर जो हमारे दल की शीर्ष स्थानीय लीडर है, उनकी सहायता हुआ था। उस दिन आके सब मिलके सहायता किया था कि ये ऑफिस को बढ़िया से बनाओ। जल गया कोई बात नहीं, दुख मत करो, काहे कि यहाँ 200-250 मेंबर है ऑफिस का। तो इसके लिए रिनोवेशन हो रहा। तो रिनोवेशन को अभी तो ऑफिशियली इसको रोक दिया गया। सरकारी तौर पर हमें रास्ता में जाइए, देखिएगा हजारों पार्टी ऑफिस है। काल सीपीएम का एक पार्टी ऑफिस 2 महीने उद्घाटन हुआ, बीजेपी में धादगा का उद्घाटन हुआ। तो मेरा जो ऑफिस पुराना था, जहां मिनिस्टर, यहाँ का एमएलए मिनिस्टर है, उन्होंने आके बैठता है, उसको रोक दिया गया। बहुत शर्म की बात है। कॉरपोरेशन से नोटिस आया, वो नोटिस का हम लोग एक्सेप्ट किया, उसका उत्तर हम लोग देंगे। फिर कल थाना से वैन भेजा, वैन भेज के और एक नोटिस पकड़ाया। तो लगता है कहीं ना कहीं ये हम लोग का पार्टी के ऊपर किसी न किसी का ये चल रहा कि ये ऑफिस ना बने। और यहाँ का इतना आम है, पब्लिक है, जिसको काम हो रहा था, इस काम को रोकने का एक तरीका निकला है। कहा जा रहा है कि यही का स्थानीय लोग ही कंप्लेन किया है इसको रुकवाने के लिए। नहीं, इसका डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे देते हैं। स्थानीय पब्लिक अगर आपको दिया है वो डॉक्यूमेंट्स आपका पास नहीं होगा, शायद एक आधा का होगा। ये सरकारी ज़मीन है, पब्लिक का नहीं है। अगर पब्लिक कंप्लेन करेगा तो सरकारी ज़मीन का करेगा। जो पब्लिक हमें ज़मीन दिया है उसका कागज भी हमारा पास है। और ये मास पिटीशन देखिए, यहाँ का लोकल 1000 पीपल का ये मास पिटीशन है। यहाँ का 1000 पीपल का मास पिटीशन है, जो चाह रहा कि यहाँ पर ऑफिस हो। इस जगह का 1000 से भी ज़्यादा परिवार का मास पिटीशन आप लोग को हम दिखा सकते हैं। इसका ऊपर हम भेजें, सीपी से लेके, मेयर से लेके, थाना से लेके, एमएलए से लेके सबको भेजे हैं। ये पब्लिक डिमांड है, एक ऑफिस होगा या काम होगा, तो इसको रुका का है। कैसे रुक रहा, कौन रुक रहा है इसका पीछे, यही हम लोग का क्वेश्चन है। कॉरपोरेशन अगर रुकता है तो कॉरपोरेशन में भी सरकार हमारा है। यहाँ जो पार्टी ऑफिस जला था, हमारा जो मेयर साहब था, उन्होंने भी रुपया दिया, इसको रिनोवेशन करो। मेरा कंप्यूटर बोला कि हम भेजेंगे, कंप्यूटर जल गया मेरा, जिसमें सब लोड था। मेरा एमएलए विधायक है, उन्होंने हेल्प किया। हम ब्लॉक सभापति है, हम उन लोग को मटेरियल सप्लाई दिया, जो मटेरियल लो। अदर्स जितना है, हाजी साहब इस वार्ड का काम। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आप लोग? प्रॉब्लम किस जगह? प्रॉब्लम कॉर्पोरेशन क्यों रुक रही है हमको मालूम नहीं है। कानून तो हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, कॉर्पोरेशन हमको क्यों रुक रहा, कॉर्पोरेशन पुलिस भेज रहा। दादा एक सवाल है कि ये बोल रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकार आपकी है, कॉर्पोरेशन आपका है, एमएलए साहब आपका है, काउंसिलर आपका है, पब्लिक आपके साथ है, तो ये कहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न हो रही है कि यहाँ ऑब्जेक्शन हो जा रहा है? ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्शन कर रहा। कॉर्पोरेशन क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा, इसका आंसर कॉर्पोरेशन देगा। आपका नाम दादा? मेरा नाम उत्पल सिन्हा, ब्लॉक 2 साहब। रेलपाल के आरसीएच सेंटर के विकास के लिए 50 लाख रुपए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, यूएसजी क्लिनिक और डेंगू की जांच का भी प्रावधान
किया जाएगा। आज एक कार्यक्रम के दौरान मेयर जितेंद्र तिवारी ने यह ऐलान किया। इस मौके पर कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी, MIC देवेंदु भगत, डॉक्टर गांगुली, गुलाम सरवर, वसीमुल हक मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कॉर्पोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी साहब, हमारे MMSI हेल्थ देवेंदु भगत जी, हमारे बोरो चेयरपर्सन गुलाम सरवर जी, हमारे हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी में जिम्मेदारी जिनको हम लोगों ने दिया है हमारे वसीमुल हक जी। इस हॉस्पिटल के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते रहते हैं हमारे हाजी नाथू साहब, हमारे यहाँ के काउंसलर हैं डॉक्टर गांगुली हैं, हमारे आलम साहब हैं और भी जो लोग हैं। पहले तो हम लोग यहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना की महामारी के समय जो संयम आपने दिखाया, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे रिक्वेस्ट किया तो सारे रिक्वेस्ट को आपने माना। आप लोग यदि हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं करते तो इतनी जल्दी हम लोग कोरोना को रोकथाम जो कर रहे हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते। रमजान का महीना था, तकलीफ थी उस समय। रमजान का महीने में भी अपने आप को आपने घरों के अंदर बंद रखा। शाम को मार्केट जाने के लिए भी 10 लोगों को जाना तो केवल 1 लोग गए। हाँ, ये सही बात है, कुछ गलतियां हुई, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने प्रशासन के साथ सहयोग किया और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना में हम लोग रेल पार इलाके में जितना हम लोग डरे हुए थे उससे हम लोग आज निजात पा चुके हैं। रानीगंज में कुछ मामले आए हैं, आपको पता चला होगा, लेकिन कमिश्नर साहब जैसा बता दें, रानीगंज में जो भी मामले आए हैं वो बाहर से आए हुए लोग, रानीगंज के लोकल लोगों को कोरोना हो रहा है ऐसा नहीं है, बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनके कारण हो रहा है। तो बाहर उसको लेकर हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं है, उसको बहुत जल्दी हम लोग चेक कर रहे हैं। पूरे अन्य इलाकों की तुलना में हमारे जिला में हम लोग बहुत बेहतर ये काम कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर इस कोरोना ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने हम लोग को ये सिखाया कि सबसे ज़्यादा हमको किसी चीज़ पर ध्यान देनी है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कोरोना है, भविष्य में और कोई दूसरी बीमारी भी आ सकती है। इसके लिए ये जो हमारा सेटअप है इसको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम लोगों ने बातचीत की है। कुछ सर्विसेज यहाँ पर चल रही है, जैसे OPD सर्विसेज सप्ताह में 6 दिन चल रही है, OPD सर्विसेज गाइनो सप्ताह में 1 दिन चल रही है, लेबोरेटरी सर्विसेज 2 दिन चल रहा है। लेबोरेटरी में सब कुछ काम होता है, मैनुअल एक्सरे होता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर और कुछ बेहतर काम करें, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत भी होगी और जो सरकारी हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल, उस पर भी लोड कुछ कम होगा। हम लोग चाहते हैं कि पेडियाट्रिक जो OPD है बच्चों का, वो एवरीडे यहाँ पर कम से कम चले। ये जो सर्विसेज है वो तो रहे, इसके अलावा हम लोग और कुछ चीज़ यहाँ पर चाह रहे हैं। बच्चों के लिए चले, डर्मेटोलॉजी का OPD एवरीडे चले, OPD गाइनो का कम से कम सप्ताह में 2 दिन यहाँ पर गाइनो का OPD कम से कम चले। एंटीनेटल चेकअप जो है प्रेग्नेंट महिला लोग का, उनके कम से कम सप्ताह में 2 दिन हम लोग यहाँ पर करवा पाएँ। इसके अलावा मॉडर्न लेबोरेटरी लेबर रूम एक बढ़िया, जहाँ डिलीवरी वगैरह होता है, मॉडर्नाइज लेबर रूम एक हम लोग बना पाएँ। फर्स्ट एड सर्विसेज रहे, वो जो एक्सरे है उसको हम लोग मैनुअल एक्सरे को डिजिटल एक्सरे में बदल पाएँ, डिजिटल एक्सरे हम लोग लगा पाएँ। USG क्लिनिक जो है उसको बढ़िया से हम लोग चालू कर पाएँ, ECG सर्विस। और डेंगू का समय आया तो डेंगू का टेस्ट यहाँ पर हो, जो एलिजा के माध्यम से जो मशीन बैठ गया है और बाकी सब कुछ बैठने वाला है, डेंगू का टेस्ट भी यहाँ पर शुरू हो, और उसके साथ साथ मॉडर्नाइज लेबोरेटरी सर्विस भी हम लोग यहाँ कर पाए। ये सारी सुविधा हम लोग देने के बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में विचार हम लोग कर रहे हैं। सरकार से भी हम लोगों ने बात की है और कॉर्पोरेशन ने इतनी कठिन परिस्थिति में भी, जहाँ फंड की बहुत कमी है, आप देख रहे हैं कि मेयर से लेकर कमिश्नर साहब से लेकर MIC तक सारे लोगों का गाड़ी का जो तेल है उसको भी कम कर दिया गया। AC भी आदमी बहुत सोच समझ चला रहे हैं, इतनी हम लोग कमी कर रहे हैं, खर्च में कमी कर रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ के लिए हम लोगों ने 50 लाख रुपया हम लोगों ने ठीक किया, 50 लाख रुपया हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी ये काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। यहाँ के निवासियों से निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये जो हम लोग बनाने जा रहे हैं ये आपके लिए है, आपके बेहतरी के लिए है। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतना बेहतर सर्विस हम लोग दे पाएंगे। बाहर से बहुत से स्टाफ आएंगे, उनके साथ आप फ्रेंडली बिहेवियर करें। जैसे मान लीजिए कुछ फीमेल स्टाफ भी हमारे हैं, उनके साथ भी ये यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। हमेशा गार्ड दे के, सिक्योरिटी दे के सब कुछ नहीं होता है। यहाँ के लोग जब इसको प्यार करेंगे तो फिर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी सिक्योरिटी है यहाँ के लोगों का प्यार, आवाम का प्यार, वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। वो हम लोग चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि जहाँ जैसे लोग हैं, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो जो आपकी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को हम सब लोग सारे लोग मिलकर जरूर पूरा कर पाएंगे। कोरोना काल में रक्त की संकट
को देखते हुए आज रेल पार के मक्कू महल्ला और बैरागी तालाब में तृणमूल कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही मंत्री मलय घटक ने पार्टी दफ्तर का भी उद्घाटन किया। एमएलसी अभिजीत घटक, श्याम सोरेन, काउंसिलर नूर रफत परवीन, गुरदास चटर्जी, उत्पाल सिन्हा खास तौर से मौजूद थे। आपको एक तो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई पैसा देने नहीं होगा, फ्री देगा कोई पैसा का, आप सामाजिक सुरक्षा योजना का मेंबर बन सकते हैं। इसमें फायदा क्या है, आप लोग को बच्चा लोग पढ़ेगा तो उसको हेल्प मिलेगा, कोई बीमार होगा तो पहले 20 लाख, आप ऑपरेशन करने के लिए 7 लाख, 60,000, 20,000 और 60,000। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का चीफ मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को भी 700 रुपए जोड़ देने के लिए, तो 5 लाख तक कोई भी हॉस्पिटल में जाने से फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। आपका 2 लड़की अगर ग्रेजुएट बन जाएगी तो 25,000 तक मिलेगा। किसी का नॉर्मल डेथ होगा तो 50,000 मिलेगा, किसी का एक्सीडेंट में डेथ होगा तो 2 लाख करके मिलेगा। 60 साल ऊपर हो जाने से 1,500 तक पेंशन भी मिलेगा जब तक आप जिंदा है। शनिवार के दिन आसनसोल कांग्रेसी गारुई नदी की साफ सफाई को लेकर किए जा रहे आंदोलन की अर्जी को लेकर मां घाघरबुढ़ी के द्वार पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि बरसात के दिनों में इस इलाके के घरों में पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में इस इलाके के घरों में पानी भर जाता है। इस नदी की साफ सफाई जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके और प्रशासन में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे मां घाघरबुढ़ी की जो कार्य है जल्द से जल्द हो। আমরা আজকে এখানে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসানসোলবাসী হিসেবে এসেছি মা ঘাঘরবুড়ির মন্দিরে পুজো দিতে এবং তারপর আমরা এখানে প্রসাদের ব্যবস্থা করেছি। আমরা একটার সময় প্রসাদি যে বিতরণ হবে আমরা প্রসাদ বিতরণ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানে যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে চলছে, যে সরকার মামাটি মানুষের সরকার বলে, সেই সরকার আসানসোল উত্তর বিধানসভা এলাকায় একটা বড় নদী হচ্ছে গাড়ুই নদী, সেই নদীর সংস্কার করে উঠতে পারে না। আগের বছর আপনারা দেখেছেন এই সামান্য বর্ষার জলে আসানসোলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে মা ঘাঘরবুড়িতেও এই পরিমাণ জল উঠে গিয়ে মা ঘাঘরবুড়ি পর্যন্ত নোংরা জলে ডুবে গেছিল। মা ঘাঘরবুড়ি আসানসোলবাসীর কাছে একটা আস্থার দেবী। আমরা মা ঘাঘরবুড়ি স্মরণ নিয়ে আসানসোল থেকে কোথাও যাবার পথে মা ঘাঘরবুড়ির উদ্দেশ্যে মাথা নামিয়ে বের হই। সেই মা ঘাঘরবুড়ি যেন বর্তমানে যারা প্রশাসনে বসে আছে, আসানসোলের বিধায়ক যিনি বর্তমানে মন্ত্রী, আসানসোলের বিভিন্ন কাউন্সিলর, আসানসোল কর্পোরেশনে যারা বসে আছেন, তাদের মাথায় একটু সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন। অবিলম্বে এই গাড়ুই নদীর খনন কার্য শুরু করে গাড়ুই নদীর সংস্কার করে যাতে এবং যেখানে যেখানে জমি দখল হয়ে গেছে সেই জমির দখলকে উচ্ছেদ করে এই নদীরকে যদি পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গাড়ুই নদীর সংস্কার হলে আসানসোলের মানুষও বাঁচবে এবং সর্বোপরি মা ঘাঘরবুড়িও নোংরা জলে যে ডুবে যায় সেখান থেকেও রক্ষা পাবে। আমরা এই জন্য আজকে এসেছি যে মা তুমি কমসে কম আসানসোলের বসে থাকা বিধায়ক, মন্ত্রী, কাউন্সিলর প্রত্যেকের মাথায় সদ্বুদ্ধি প্রদান করে খালি একটা জেসিবি নামিয়ে, কংগ্রেস দল একদিন আন্দোলন করলো বলে একটা জেসিবি নামিয়ে মানুষের চোখে চশমা পরাবেন না। অন্ততপক্ষে এই কাজ করতে গেলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, এই বৃষ্টি পড়ছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যদি কাজ করা হয় আসানসোলের বুকে, এই গাড়ুই নদীর বুকে, তাহলে আমার মনে হয় আসানসোলের মানুষও রক্ষা পাবে এবং মা ঘাঘরবুড়ি মন্দিরও রক্ষা পাবে। আমরা আজকে প্রার্থনা করতে এসেছি, এখানে রাজনীতি নয়, আমরা দাবি করতে এসেছি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে এবং যিনি আসানসোলের সাংসদ হয়ে বসে আছেন তার কাছেও, তিনিও তো একটা দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারে বসে আছেন, তার কাছেও একটা আবেদন করতে এসেছি, তার মাথায় সদ্বুদ্ধি দিক যে খালি ধর্মের নামে রাজনীতি করলে হবে না।
মা ঘাগরবুড়ি আসানসোলের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে একটা আস্থার বিষয়। তাই তো আজকে শিখ সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, তাই তো আজকে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, তাই তো আজকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। মা ঘাগরবুড়ির কাছে আমরা সবাই এসেছি মাথা থেকে। মা ঘাগরবুড়ি সবার মাথায় সদ্বুদ্ধি প্রদান করে অবিলম্বে এই নদীর সংস্কার। देश के संपूर्ण जिले में जिला शासक कार्यालय में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कई सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के अलावा अन्य कई मांगों का उल्लेख किया गया। साथ ही पश्चिम बर्धमान जिला के शासक को प्रधानमंत्री के नाम का भी ज्ञापन सौंपा। संस्था के कई गण्यमान्य लोग इस दौरान उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल, आसनसोल।